First ever ad was a Colgate ad with Virat Kohli. But I'm also beatboxing like. नहीं बोलते अरे तू आ जा जिस एड में मैं नॉट फिट था उसमें मैं सिलेक्ट हो गया वी शुड नॉट कनेक्ट और ऐसा नहीं कि आपके ब्लड में एक्टिंग होता है और आपके बच्चों को भी अच्छी एक्टिंग करनी होगी वो प्रेशर क्यों है आई गॉट अ कॉल फॉर सम एयरटेल एड ऑडिशन एंड आई हैड 103 फीवर आई वॉज इन हॉस्टल आई वॉज लाइक मैं नहीं जाऊँगा बट देन आई थॉट कि यार इसके लिए मैं मुंबई आया हूँ और स्पोर्ट्स फिल्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में कि लोगों को ये मैसेज मिले कि आप जाओ खेलो बाहर की दुनिया देखो सिर्फ फ़ोन में मत घुसे रहो बट लाइक अभी स्टार्ट करेंगे और 6 months डिले हो गया एंड मैं 6 months कुछ नहीं किया बिकॉज आई हैड लॉक्ड माई डेट्स फॉर देम इफ आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसर आई वुड नॉट कीप दैट इफ अगर वो चीज़ बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म बीइंग ऑनेस्ट सो आई थिंक कम कमाओ लेकिन अपना मन का काम करो सो आई थिंक आप बहुत सुखी रहोगे मेंटल पीस भी रहेगा जॉब में एक सिक्योरिटी होती है ना आपकी रोज़ सुबह आँख खुले आपको पता है कि आपका जॉब है एक्टिंग में और ये सब में आपको पता नहीं है ना आज एक प्रोजेक्ट खत्म हो ओह शिट यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स हाय आई एम मिहिर आहूजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका Vidhi Singh and you're watching Bazooka and today we have Mihir Ahuja with us. So first of all, a warm welcome to Bazooka to you. थैंक यू विधि Well, देखा जाए तो आप हर जगह छा रहे हो तो अभी दिलों में भी छा गए हो फिर मैं जानना चाहूँगी कि लाइक आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड आई वांट टू नो कि जमशेदपुर से मुंबई तक का सफ़र कैसा था और क्या स्ट्रगल्स रहे एंड व्हाट यू लर्न लेसन फ्रॉम दिस जर्नी. So I moved to Mumbai in 2017 and I moved here for college. I did my degree here. But the main reason to be here was acting and that's the reason I shifted here. College सिर्फ एक बहाना था और हमेशा से शुरू से एक्टिंग का कीड़ा था बचपन से एक्टिंग से ज़्यादा एक परफॉर्मिंग का कीड़ा था लाइक just performing arts be it dance drama acting singing beatboxing I also beatbox so ये शुरू से मुझे like you know I really used to enjoy being on stage and being in front of the camera but in Jamshedpur drama was not given that importance as an acting तो हमारे स्कूल में डांस ये सब होता था डांस एंड सिंगिंग बीट बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स बट ड्रामा में उतना कुछ ज़्यादा होता नहीं था Okay. And I was looking out for कि where can I perform, where can I act, any street plays, stage plays. So I planned, okay, like post my schooling, I'll move to Mumbai for my further studies, and that's when I'll start acting side by side. I'll start auditioning. So that's when I was done with my schooling in Jamshedpur, I moved to Mumbai for college, and from the very first day I started going to auditions and started auditioning. And yeah, that's how I started getting projects. My first ever ad was a Colgate ad with Virat Kohli, and since then there's no looking back. I've just been auditioning and working. Yeah, that's Okay. what. And what you learned from this journey, like till now? What did I learn from this journey? Yeah. I learn every day. I mean, because you know, there was a time, like 8 years back in 2017-18 when. Nothing was happening. I was not getting anything. I was just auditioning and they used to say not fit for this project, not fit for that project. There was this feeling of rejection कि यार क्यों नहीं हो रहा है कुछ कोई select कर क्यों नहीं रहा है like I am confident as an actor but why they're not taking me, why they're not, because everyone wants experience for the first project. It's really difficult to bag the first ad, the first film, the first web series. Once you have some experience then they're like हाँ चलो इसने ये ad किया है. So that first project, to bag that first project is always a task. So learning यही है कि यार you just have to believe in your dream and just keep going. अगर आज if odds are against you and it's not working for you, you can't let that decide your future. Your future might be really bright, but you have to like really keep working towards your dream and just believe in yourself and don't give up, yeah. Okay. So as you said कि your first project was ad with Virat Kohli. So उस audition को पाने के लिए I mean उसे crack करने के लिए कितने auditions दिए और like how much you. मैंने आज तक तो आई थिंक अराउंड 1500 ऑडिशंस तो दे दिए होंगे ऑफ कोर्स Oh लाइक my क्योंकि मैं हर दिन एटलीस्ट 10 ऑडिशन देता था
ये पिछले 2017 से, अब मैं मैथमेटिकली काउंट नहीं करना चाहता हूँ 365 इंटू 10 ये सब, बट अराउंड 1000 ऑडिशंस तो दे ही दिए होंगे ईजीली। मतलब ऑडिशंस आते थे तो मैं दे ही देता था। एंड अगर जैसे सोचो कि मुझे एक ऑडिशन का कॉल आया एंड आई यूज्ड टू स्टे इन चर्च गेट फॉर द फर्स्ट ईयर बिकॉज माई कॉलेज वॉज इन चर्च गेट। सो अंधेरी अगर मैं जा रहा हूँ, सो अगर एक ऑडिशन के लिए मैं जा रहा हूँ, आई वुड प्रेफर कि मैं अंधेरी आया हूँ, सो आई वुड नॉक एवरी पॉसिबल डोर एंड आस्क कि कुछ चल रहा है क्या, कुछ चल रहा है क्या। बिकॉज अगर मैं इतने दूर एक ऑडिशन के लिए आया, आई वुड नॉट गो गिव वन ऑडिशन एंड गो बैक टू अ चर्च गेट टू माई हॉस्टल। आई वुड रादर लुक फॉर मोर ऑडिशंस। लाइक उसके पहले काफ़ी ऑडिशंस दिए थे। एंड इस दिन भी मुझे याद है जिस दिन कोलगेट का एड मिला विराट के साथ, आई गॉट अ कॉल फॉर सम एयरटेल एड ऑडिशन एंड आई हैड 103 फीवर। आई वॉज इन हॉस्टल, आई वॉज लाइक मैं नहीं जाऊँगा बट देन आई थॉट कि यार इसके लिए मैं मुंबई आया हूँ, आई हैव टू गो, फीवर हो कुछ भी हो। सो आई वेंट फॉर दैट एयरटेल ऑडिशन, उसमें तो नहीं हुआ। एंड देन आई वाज जस्ट क्रॉसिंग एंड देन जस्ट नॉक द डोर एंड आई आस्क्ड कि कुछ चल रहा है क्या। द कास्टिंग टीम वाज लाइक नहीं यू आर नॉट फिट फॉर द पार्ट। आई वाज लाइक बट आई एम आल्सो बीट बॉक्स लाइक। सो मैं ये हमेशा करता था, यू नो, लाइक वेन एवर पीपल यूज्ड टू से दैट यू आर नॉट फिट, आई हैड दिस क्वालिटी ऑफ बीट बॉक्सिंग टू स्टैंड आउट। एंड बीट बॉक्सिंग करके लोगों को बताना पड़ता था कि दिस इज़ बीट बॉक्सिंग बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो बैक देन कि व्हाट इज़ बीट बॉक्सिंग। सो आई वाज लाइक बट आई एम आल्सो बीट बॉक्स लाइक। एंड ही वाज लाइक अरे तू आ जा अंदर। जिस एड में मैं नॉट फिट था उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। Like So, fortunately आप yeah. उस जगह गए, Yeah. पहुंचे and then you got हाँ, that ad. आई स्टिल रिमेंबर दैट लेन इन आराम नगर अंधेरी। मतलब मैं ऐसे जा रहा था एंड ऐसे ऊपर देखा, ऊपर चढ़कर स्टूडियो था एंड वहाँ 2-3 लड़के खड़े थे, तो मुझे लगा कुछ तो चल रहा होगा, ऑडिशन पूछ लेता हूँ एक बार। जाते जाते बस पूछ लिया एक बार। मैं अंधेरी स्टेशन जा ही रहा था चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़ने, बट बस पूछ लिया एक बार। वो आई थिंक यार वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर एक ऐड मिला ना, मिला कुछ भी कर लूँगा, अब तुम देखो, अब मैं उतर गया हूँ मैदान जंग में। Well, अगर परसेंटेज में बात की जाए तो आपकी स्ट्रगल रेट एक परसेंटेज वाइज कितनी होगी आपके हिसाब से? यार रेट तो आप डिसाइड करें, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि मैंने कब ऑडिशन स्टार्ट किया था। सो 2015 जब 10th बोर्ड्स का मैं एग्ज़ाम दिया था जमशेदपुर में। उस 10th बोर्ड्स के बाद जब एक वेकेशन मिलता है जी, आपको जी, लाइक 1 मंथ yeah. का, at that time I thought of coming to Mumbai and just auditioning and giving my introductions everywhere, meeting all the casting directors, giving my CV everywhere as an actor. तो वो आकर मैंने हर जगह सबमिट कर दिया था बिकॉज आई यूज्ड टू सर्च स्कूल में ही जमशेदपुर में कि हाउ टू बिकम एन एक्टर और ऑडिशंस इन मुंबई। तो लिस्ट आते थे, तो मैं एक पेपर में सब कुछ लेकर गया था, लाइक पूरे A4 साइज़ फाइल। सो मुंबई आकर मैंने सारे ऑडिशनिंग एंड देन आई वेंट बैक बिकॉज 11th 12th मेरे जमशेदपुर में ही था। Yeah, So, yeah. एक हफ्ते की छुट्टी में मैं आया था और फिर वापस चला गया था। एंड देन व्हेन आई वेंट बैक आई यूज्ड टू गेट कॉल्स फॉर ऑडिशन, सेल्फ टेस्ट के लिए कि घर से आप ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजो। जैसे अब कोविड के बाद सेल्फ टेस्ट ही होता है, सब घर से Yes, ऑडिशन yes. रिकॉर्ड करते। सो वो मुझे कॉल्स आते रहते थे, बट हमेशा लास्ट मिनट पे इसलिए ना हो जाता था कि अरे एक्टर तो जमशेदपुर में है, उसका आने का खर्चा, रहने का खर्चा, अकोमोडेशन, स्टे, ट्रैवल, वी नॉट, इफ दे आर फाइंडिंग एन एक्टर इन मुंबई it's more comfortable for them, right? So even if I'm in the final shortlist for that ad, I would never get that ad because I'm in Jamshedpur. So good budget, good ad, good production, but I used to miss it. So ऐसे ही करते करते then I planned कि I told my parents I have to move to Mumbai. See, I'm getting audition calls. I have to move to Mumbai. मिले नहीं मिले, चलो मैं at least कॉलेज के लिए चल जाता हूँ मुंबई. Then I'll do it side by side. And they were very supportive. स्ट्रगल रेट यार, अगर मैं नवाज सर की बात करूँ और इन पंकज सर, इन दिग्गज एक्टर्स की बात करूँ, तो उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया हूँ मैं स्ट्रगल। आई हैव बिन वेरी लकी। मतलब Yes. मुझे मैं 2017 में मुंबई आया, 2018 जून में मुझे मेरा फर्स्ट ऐड मिल गया। या बट दैट फर्स्ट बिग ब्रेक विच वॉज द आर्चीज, आई कंसिडर आर्चीज टू बी माई फर्स्ट बिग ब्रेक, Yes. वो मिलने में टाइम लगा। एंड अभी भी एक तरह से मैं स्ट्रगल नहीं बोलता, एक तरह से हसल ही है रोज़। Yeah. अभी भी हसल कर रहा हूँ और वो Yeah. हसल तो आई थिंक लाइफ टाइम चलता रहेगा टिल माई डेथ बेड। सो आई डोंट से इट एज स्ट्रगल। Yes. हसल इज़ अ गुड वर्ड। Okay, hustle. Okay. Well, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अभी तक के लिए आपके हिसाब से आपकी बिग अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी तक Yes. आई थिंक आर्चीज है। Okay. Yeah. Any other one? Archie's has given me a lot because everyone, the kind of marketing that film had and the kind of makers that film has, Yes. Zoya Akhtar, Tiger Baby, Yeah. and the entire cast involved, such a beautiful cast. Yes. So I think that film gave me a lot. Yeah, I think like One of everyone your knows me best. after Archie's, so Okay. it's great to be
validated and known. वेल अब आपने बात की है आर्चीज़ की, तो आर्चीज़ पे ही हम थोड़ा सा चलते हैं। कैसे हुआ था सिलेक्शन, कैसे मिला था प्रोजेक्ट, और जब आपके पास आया था तो स्क्रिप्ट जानने के बाद हाउ इज़ यू फीलिंग, आई मीन फॉर दैट एट दैट मोमेंट, और क्या लगा था, मतलब लाइक पहले कैसा फील हुआ था, एंड ऐसा था कि नहीं रिजेक्ट करना है समथिंग काइंड ऑफ? बिल्कुल नहीं, मैं तो जोया अख्तर का नाम देख रहा है, लाइक क्यों रिजेक्ट कौन करेगा, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो रिजेक्ट करेगा ऐसी फिल्म. ओके. So I'll tell you the entire story. So I got a very small some show for some platform I'm not naming. जो स्टार्ट नहीं कर रहे थे. I was locked for that. But they were like अभी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, और वो 6 months डिले हो गया. एंड मैं 6 months कुछ नहीं किया बिकॉज आई हैड लॉक्ड माई डेट्स फॉर देम. चलो ठीक है, ऐसा होता है इंडस्ट्री में, डेट्स वेट्स का इशू होता है. बट फाइनली फिर वो स्क्रैप हो गया प्रोजेक्ट. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी वो स्क्रैप हो गया. क्यों? बिकॉज वो स्क्रैप हुआ तो मुझे मेड इन हेवन मिला. वाओ. मेड इन हेवन मिला. आई मेट जोया ऑन द सेट्स ऑफ मेड इन हेवन. सो आई हैड 1 or 2 scenes विद जोया, नॉट मच. ज़्यादा सीन्स मेरे अलंकृता मैम के साथ थे या नीरज सर सबके साथ थे. आई हैड दिस वन interrogation scene with Zoya in a police station, and she was really happy after that scene when we shot that, and she told me on set that I have this film I'm doing for Netflix. It's called she didn't name the film. She said I want you to audition for that film, and yes, that's how I got a call for the audition. Like Zoya told me to audition, and अगर Made in Heaven नहीं होता तो आज चीज़ कभी नहीं होता. So फिर पहला लेवल ऑफ ऑडिशन हुआ, घर से मैंने ऑडिशन सेंड किया, and then I think 2-3 levels of auditions were. Then the final audition was with Zoya at Tiger Baby Yeah, office. And after a week, I got a call from the Nandini Shrikant's casting team at Mihiri of Reema, and I still remember Karan called me from Nandini's team, and Karan Mali, he's Nandini's partner. He called me and he said, Mihir, Zoya and Reema really liked you for the part, and they would like to offer you the part of Jughead. And I started sobbing on call. Man, मैं तो रोने लग गया. I was like, ये उनको पता नहीं चले मेरी excitement, बस calm down. But I was literally crying on call. Oh my God. And yes, that's how it started. Oh. It's just like a dream project. काफ़ी Yeah. इमोशनल भी है. Oh my और- God, I was just I thank God every day for that. बट that वो day. मोमेंट पे सच में ऐसा फील हुआ था कि लाइक मतलब कहते हैं ना कि जन्नत मिल गई, ऐसा कुछ? मुझे हर प्रोजेक्ट पे लगता है जन्नत मिल गई. फॉर एन आउटसाइडर हु इज़ ऑलवेज ड्रीम टू बी इन द फिल्म इंडस्ट्री, जिसके लिए सिनेमा एक अलग दुनिया थी, कैसे उस दुनिया में जाना कुछ पता ही नहीं था. यस. और आज जब मैं एक छोटी से छोटा ऐड भी करूँ, अगर मैं यहाँ भी आऊँ, मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, मेरे लिए हर चीज़ जन्नत है. आई एम लिविंग माई लाइफ. एक एड्रेनलिन रश मिल रहा है मुझे उसमें. आई एम हैप्पी एवरी सिंगल मोमेंट बिकॉज आई एम गेटिंग टू लिव माई ड्रीम. वाओ. सो या. अगर बात करें इफ़ यू आर लाइक हैविंग अ बिग फर्स्ट मूवी एंड दैट इज़ सुपर 30, वो आपने कैसे पाया था, और उस दौरान कोई ऐसी बेस्ट मेमोरीज विद ऋतिक रोशन जो कि आप अभी शेयर करना चाहो? I wish, yeah, because मेरी ऋतिक से ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी. He was always in character, and I got to learn a lot from him just by observing him on set. And मेरे उनके साथ उतने scenes भी नहीं थे. I had some 20 days of shoot, but there's hardly any cut in the film. You'll have to look for me in the film because बहुत चीज़ें edit भी हो गई, and you know when something is not needed in the film, if I'm also a producer, I would not keep that if अगर वो चीज़, because I was not a very important character in the film, being honest. But it's a great experience again. Like it was just a good experience being on the sets of Super 30. ऋतिक सर के साथ उतनी बात नहीं हो पाई because he was always in character. आनंद कुमार का character he was playing. Yes. And वो बिल्कुल different उनके personality से. So बस उनसे एक नॉड ही होता था ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था. बट नाउ द सेकेंड टाइम आई मेट ऋतिक सर वाज ड्यूरिंग द आर्चीज़ प्रीमियर, जब पूरी इंडस्ट्री आई थी. So there Hrithik sir met me and he was like, oh, you went Super 30, he recognized me. Fantastic. So he was really happy looking at me, and I just adore him, yaar. He's always been my idol. That man can do anything, yaar. He's such a gorgeous man, yaar. I mean, he can dance, he can act. And look at him. Greek god, literally. विजय 69 ये मूवी देखा जाए तो काफ़ी एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ में आई है, मोटिवेट करने के लिए, इवन नॉट फॉर जस्ट ओल्ड पर्सन बट इवन फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो. क्योंकि लोग एक जो कहते हैं कि बूढ़े होने के बाद हमें कुछ काम नहीं करना, इंसान थम जाता है, कहते हैं ना बस मर जाऊं. क्योंकि मैंने एक इसका वर्ड सुना था कि सपने देखने का कोई उम्र नहीं होता, तो वो आप सपने ऐसे देखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती. या
थैंक यू फॉर कंप्लेनिंग. Yeah. बट वो मैं ये जानना चाहूँगी कि हाउ यू गॉट दिस प्रोजेक्ट एंड जब आपने ये देखा तो आपका परसेप्शन क्या था इस मूवी के लिए? See, first of all, I was sold because it was Akshay sir, Akshay Roy. He directed Meri Pyari Bindu. He's a great director to work with. Very sweet, yeah, so sweet. And he's always like this baby on set who's like always hugging everyone. Akshay sir के साथ काम करना बहुत, like when I got to know that he's associated with the project, I was like, okay, I have to do this. And then of course Anupam ji, and then YRF. Okay. कोई बेवकूफ़ भी होगा जो मना करेगा इस प्रोजेक्ट को भी. तो Okay. आई थिंक जैसे चीज़ के टाइम था कि आई वाज लाइक सोल्ड, मुझे करना ही है ये. इसमें भी मेरा वैसे ही था. एंड but when I auditioned for it, it was like, okay, I have to play a triathlete, and it's great, yeah. When you get to play a sports person as an Yeah, actor, yeah. because I love these physical challenges when you have to undergo these physical challenges. So I had to practice swimming for around 20 days, and cycling और मैराथन रनिंग भी था उसमें. तो रोज़ मैं सुबह Yes. 4:30-5 बजे उठकर स्विमिंग जाता था, उसके बाद रनिंग जाता, फिर साइकिलिंग जाता था. ये रूटीन बन गया था मेरा पिछले लाइक 1 महीने के लिए. एंड दैट्स हाउ वी डिड द फिल्म. एंड अनुपम जी ऑल्सो, ओ माई गॉड, एट दिस एज ही वाज जस्ट पुशिंग हिज बाउंड्रीज, हिज लिमिट्स. सो ही वाज इंस्पायरिंग मी. लाइक वो स्विमिंग कर रहे थे स्टेज में, स्विमिंग सीख रहे थे एट द एज ऑफ 69. ही इज़ एक्चुअली 69. सो अगर यार अनुपम जी कर सकते तो हमें भी, लाइक यू नो, वी शुड बी इंस्पायर्ड लुकिंग एट दैट मैन, what he's doing. And he's done around 500-600 films in his career, and still every film he does with the same zeal and passion. That's amazing. So I was very sold in the very beginning when I got to know the makers of this project, the people involved in this project, and the kind of project it is, you know, like sports marathon. And I think we need to bring out more sports related stories in India, so that people and young generation जो आजकल सारे सिर्फ रूम में बैठ रहे थे, Gen Alpha, अब तो Yes. जितने भी generations है, they're all into indoor games. I'm lucky to be born in that generation कि मैं तो गुल्ली डंडा भी खेला हूँ और मैं क्रिकेट भी खेला हूँ. Oh. मैं सब कुछ खेल कर बड़ा हुआ हूँ. उसके बाद हम इवेंचुअली वीडियो गेम्स में और प्ले स्टेशन में आ गए, सुपर मारियो ये सब. बट हम दोनों सिक्के के दोनों पहलू देख लिए. बट आजकल की जो जनरेशन है, मोस्टली देर आर पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स. ऐसा नहीं कि लोग नहीं खेलते स्पोर्ट्स. आई नो किड्स हु आर लाइक एक्सेलेंट इन जिमनास्टिक्स एंड एवरीथिंग. बट और स्पोर्ट्स फिल्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में, कि लोगों को ये मैसेज मिले कि आप जाओ, खेलो, बाहर की दुनिया देखो, सिर्फ फ़ोन में मत घुसे रहो. Okay. वेल अनुपम खेर के साथ के साथ में आपका जो आपने उनके साथ शूटिंग की है, तो क्या सीखा, आपको क्या सीखने के लिए मिला? बिकॉज अनुपम खेर सर इज़ लाइक कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपने उनसे क्या सीखा? लाइक कुछ एक पॉइंट. और सबसे ज़्यादा मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त बना लिया है. एंड ही इज़ लाइक अ बडी टू मी नाउ. मतलब वो मुझे याद रखते, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं, एंड हमारी बातें होती है व्हाट्सएप पे. एंड ही लाइक्स दैट. He likes when people like, and that's how you should do. If you're working with someone, you should stay in touch, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होते कि like in our industry, if you're doing one project then you're back to another. सब इतने busy हो जाते कि हमें contact रखने का time नहीं मिलता है. But Anupam ji makes sure that he talks to everyone and every single person. And whenever we used to have lunch on set, Anupam ji is that person who would never eat alone. वो सबको साथ में बैठा के अपने घर का खाना खिलाएंगे, आ जाओ, ये खाते वो खाते. सो वो बहुत एक मज़ेदार चीज़ है उनमें, जो एक क्वालिटी मुझे लगी, कि वो हमेशा मिल बांट कर खाते हैं, हमेशा लाइक जोक्स डिस्कस करना, इधर उधर की बातें करना. एंड हमें कितनी पहले की बातें बताते थे अपने करियर की. लाइक व्हेन ही स्टार्टेड, ही हैज़ सम ग्रेट स्टोरीज. ओ माय गॉड, सम रियली फनी स्टोरीज. सो yeah, it was great working with him, and what I got to learn from him is never ending. I mean, just by looking at him on set when he's performing, I just got to learn a lot. The way he performs, the way he takes pauses before, and he just switches on and switches off. He's that actor who doesn't need to be in the character all the time. वो हमारे साथ कैजुअली बात करेंगे और फिर वहाँ जाके ऐसे पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देते हैं, आपको लगेगा अरे क्या कर दिया इन्होंने. सो वो सब चीज़ सीखने को मिला है. ओके. वेल अगर बात करें
बिकॉज़ ये स्टोरी विजय मैथ्यू पर बनी गई है, जो कि 69 की एज पे वो उन्हें एहसास होता है कि अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर मुझे कौन जानेगा, और वो उसी के बाद से उन्हें ऐसा रहता है, जुनून आता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन होता एंड लाइक 69 के एज में अब आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, बिकॉज़ मैं मरने के बाद मुझे कौन जानेगा और कौन पहचानेगा। तो यू नो लाइक विजय ने तो ट्रायथलॉन किया था, व्हाट यू विल डू समथिंग लाइक दिस कि आपको लोग याद रखें, अगर उस जगह आप होते तो? काफ़ी हेक्टिक सवाल है ये, सोचना पड़ेगा पहले। 69 की बॉडी में मुझे जाने दो। मैं क्या करूँगा व्हेन आई एम एट दैट एज? आई थिंक Anything, आई your थिंक favorite आई थिंक thing जब like जब this सब you want to कुछ do. जब एक इंसान सब कुछ पा ले, यू नो व्हेन यू हैव Any when you wish? have everything in your life, what you're wishing for, what you dreamt of, Yeah. you have your family, you have money, you have fame, everything. I think eventually what you would want is कि आप अब दुनिया को हेल्प करो, जो रतन टाटा करते थे, और मैं टाटा से ही हूँ, टाटा नगर। तो वो अगर उनका मैं हाफ या 1/4 भी कर दूँ ना जो उन्होंने किया है, आई थिंक इल बी ग्रेट यार। सबको उनसे ये सीख लेना चाहिए कि आप डोनेट करो। सच अ वेल्दी मैन, one of the richest people in the like in the Yes, world, in yes. fact, he believes in donation। और कितना डोनेट करते हैं लोगों को। Exactly. उनके पास वो सिंपल कपड़े जूते पहनते हैं, ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं। Exactly. एंड he was living his life but आराम से, and he was donating, like कितना charity कितना करते हैं वो। सो आई थिंक वो आई थिंक एक सीख है जो मुझे उनसे मिली है, रतन टाटा जी से, जो मैं कोशिश करूँगा करने की, कि जब बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत और पैसे कमा लूँ तो उसका कुछ हिस्सा बड़ा हिस्सा मैं चैरिटी में देना चाहूँगा अपने लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ माई लाइफ में। Okay. Well, जब आप ये एक्टिंग करियर में आए तो फैमिली से क्या एक्सपेक्टेशन थी? क्या वो चाहते थे कि आप इसी एक्टिंग में जाएं, या फिर उनका कुछ और सपना था? See, they were very supportive of my career choice from the very beginning. मैं स्कूल में भी अगर डांस कर रहा हूँ, they were like okay चलो करो, बट ऐसा था कि never leave your studies behind. You have to have a basic education and then you can proceed to do whatever you want. Okay. So they wanted me to do graduation and then eventually MBA because I was from a commerce background. बट जब मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए, मेरा भी यही था, मैंने कैट और जी मैट की कोचिंग्स भी स्टार्ट कर दिया था लेना सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज में, बिकॉज कैट जी मैट के एग्ज़ाम्स क्रैक करने Yes, पड़ते हैं yes. MBA के लिए। बट इन द सेकेंड ईयर ओनली आई गॉट माई फर्स्ट एड, एंड उसके बाद फिर एड्स मिलते गए एंड यू नो गुड मनी ऑल्सो। सो माई डैड वॉज ऑल्सो लाइक सर पैसे भी कमा रहा है, काम भी मिल रहा है जिसको करना था। बट अभी भी इनके मन में हमेशा से ये रहता था कि चलो सिक्योरिटी नहीं है, जॉब में एक सिक्योरिटी होती है ना, आपकी रोज़ सुबह आँख खुल रही है, आपको पता है कि आपका जॉब है। एक्टिंग में और ये सब में आपको पता नहीं है ना, Yes. आज एक प्रोजेक्ट खत्म हो, ओह शिट यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स। Yes. सो वो एक हसल हमेशा ऑन रहता है, बट यही तो रिस्क है। और अगर आप अपना आपका जो ड्रीम है आप वो किए नहीं तो फिर हर दिन घुट घुट के जीने में कुछ मज़ा नहीं है। सो आई थिंक कम कमाओ लेकिन अपना मन का काम करो, सो आई थिंक आप बहुत सुखी रहोगे, मेंटल पीस भी रहेगा। एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट था बट आजकल ज़्यादा बातें हो रही है मेंटल हेल्थ के बारे में, विच इज़ वेरी ट्रू। आप अगर मेंटली खुश हो तो आप यू नो यू आर स्ट्रेस फ्री Yeah, एंड यू विल because बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एंड ट्रू, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड, बिकॉज कभी कभी इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर आज आपका सुबह का मूड अच्छा रहा तो वो कहते हैं कि पूरा दिन अच्छा जाएगा, बिल्कुल। और अगर नहीं एक चीज़ से खराब हुई तो वो ऐसा लगता है कि सारी खराब और अगर जा रहे नहीं भी अच्छा रहा मूड तो मैं बता रहा हूँ, बस अपने आप को बोलो मूड अच्छा है, मूड अच्छा है, मूड अच्छा है, मूड अच्छा हो जाएगा। आपके ब्रेन को ट्रिक करो आप। हैं। अच्छा, हाँ, ओके, दैट्स हाउ यू ट्रिक योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, या that's how work. Okay, so do you believe in laws of attraction? और आप Yeah. you know मैंने ऐसा देखा है कि लोग अपने बकेट्स बनाते हैं, बुक में लिखते हैं, विश लिस्ट होती है, तो अभी तक में आपकी कोई विश लिस्ट है जो कि आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, wish list as in for work related or? Yeah, like in career and then your dreams or anything like you want to share with us. किसी में भी. It's not I about think the specific. I would love to work with Sanjay Leela Bhansali sir one day, Oh. because I've always dreamt of being on his sets and the kind of nuances he has and details in every single एक पर्दे में भी उनको पता होता है कि क्या यहाँ से यहाँ, you know, like
उनके उनके फ्रेम में मुझे लगता है एक कर्टन भी एक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट एज एन एक्टर है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू एक्ट Yeah. सर्टन वे. सो वो मुझे एक बहुत खासियत और एक ब्यूटी लगती है देवदास के टाइम से. मैं जितनी उनकी Yes. फिल्म्स देखता हूँ तब से. Yes. सो आई वुड लव टू वर्क विद संजय सर यार. इट्स अ Okay. ड्रीम टू वर्क विद हिम. So it's meant that हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ में आपको काम करना है. मैनिफेस्ट करते हैं साथ में. Yes, manifest. And what about रोहित शेट्टी? क्योंकि of वो भी course. काफ़ी चल रहे हैं. हाँ अरे जितने भी डायरेक्टर्स हैं सारे. आपने विश लिस्ट पूछा तो मैंने लाइक एक डायरेक्टर का नाम लिया. ऐसे तो नेवर Okay, एंडिंग लिस्ट okay, है. okay. राजकुमार रानी, शुजित सरकार, रोहित शेट्टी. द लिस्ट गोज नेवर एंडिंग, बट ऑफ कोर्स या. So एक्टर की बात करें, अब आपने अगर डायरेक्टर कहा है फेवरेट डायरेक्टर, तो अभी कोई एक्टर और एक्ट्रेस जो कि रणबीर कपूर हैंड्स डाउन. रणबीर कपूर इज द ये हिल रहा है बार बार. It's okay, it's okay. Ranbir Kapoor is the best actor I think our country has ever seen. He's such a gem to the industry, yaar. I think I would love to work with him, yaar, because he's one actor I've seen. अगर उनको कुछ सीन में ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं जाए, वो बस अपनी आंखों से दिखाए थे. अगर उनको डायलॉग्स नहीं भी दो, वो बैठ कर he just tell the audience what it is just through his eyes, and that's acting. डायलॉग बोलकर तो बहुत लोग कर लेंगे एक्टिंग, बट आपको जब कुछ दिया नहीं जाए और आपको सिर्फ अपने इस बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट से एक्टिंग करना है, दैट्स व्हेन द मेन चैलेंज इज. और वो रणबीर कपूर क्या बखूबी निभाते हैं. डज इट रियली वेल. या वेल, कौन सी मूवी आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी है? तमाशा इज़ माई फेवरेट फिल्म, एंड ऑल्सो इम्तियाज सर इज़ फ्रॉम माई होम टाउन जमशेदपुर. Okay. सो एक बायस भी है उनके तरफ. लाइक जमशेदपुर के हैं हम तो अच्छा लगता है जब जमशेदपुर के व्हेन ही इज़ फ्रॉम अपने माधवन इज़ फ्रॉम जमशेदपुर. इट फील्स गुड. हाँ कि अरे ये तो अपना अपने लोग हैं. So but हाँ तमाशा, regardless of being biased to Imtiaz sir, it is my favorite film. And I've always said it is my favorite film because it also talks about art in a certain way, and me being an artist, I can resonate and relate to it a lot. And Ranbir Kapoor also, and Ranbir Kapoor in any film is brilliant यार. वो हर कुछ कर लेता है बंदा यार. Animal भी हो यार. He's just an actor who can do anything. And I just love him यार. I love him. वेल, ऐसा कह सकते हैं कि समवेयर उन्हें अपनी फैमिली से वो चीज़ मिली है, बट ऐसा अब देखा जा रहा है कि जितना स्टार किड्स हैं वो उतना नहीं अच्छा कर पा रहे हैं जितना उनके पेरेंट्स थे. फॉर एग्जांपल के लिए सुनील शेट्टी. I think I would want to comment on that कि हम we should बिकॉज never. आज की जो जनता है उन्हें एक एक्सपेक्टेशन होता है. एवरीबडी हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि जो उनकी मतलब उनके पेरेंट्स जिन्होंने किया, इफ़ वी टॉक अबाउट सनी देओल और अक्षय कुमार के तो हालांकि वो है नहीं, बट सुनील शेट्टी हो गए, एंड देन But to be honest, इवन yeah, I got your question. But to be honest, we should never have that comparison or expectation. अब अगर my dad is great in business, we have a wholesale departmental store in Jamshedpur. अब मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा हूँ. Yes. तो अब लोग तो ऐसा नहीं बोल रहे ना कि देख कर कि यार इनका बेटा तो बिजनेस नहीं कर रहा है, इनके डैड को देखो कितना अच्छा. तो जो भी कर रहे हैं आई थिंक वो लेकिन उनकी अलग जर्नी थी, इनकी अलग जर्नी है. वी शुड नॉट कनेक्ट. और ऐसा नहीं कि आपके ब्लड में एक्टिंग होता है और आप इनके पापा अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनके बेटे और आपके बच्चों को भी अच्छी एक्टिंग करनी होगी. वो प्रेशर क्यों है? ठीक है, जस्ट उनको उनके परफॉर्मेंस से देखो. आई थिंक यू शुड नॉट सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम or how their parents were as actors or how big they were. Just look at them and their talent and just believe in them and just accept them. I mean, I think everyone has the right to make mistakes and perform and learn through their mistakes. मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, बट हाँ आई थिंक दैट जब बैगेज वो किसी पे आ जाए ना, आई कैन नॉट इमेजिन बीइंग ऑन दैट बैगेज. Of course, I'm an outsider, but if I was a star kid, having that baggage is really like it's a big burden. Yeah. कि आप आपके डैड या आपके मॉम इतनी अच्छे एक्टर है और लोग आपसे एक्सपेक्ट करते, क्यों रहे वो एक्सपेक्टेशन? उनकी अलग जर्नी थी, हमारी अलग जर्नी है, तो वैसे देखना चाहिए. आई थिंक हर ऑडियंस को ये चीज़ समझ आना चाहिए कि आप डोंट कंपेयर एंड डोंट एक्सपेक्ट, जस्ट वॉच देम एज दे आर. एनी बॉलीवुड क्रश जो कि आपको ऐसा लगे कि यार इसके साथ काम करने को एक मौका मिल जाए? Sonali Bendre has always been my crush since childhood, and I would love to work with her. Oh. Yeah. Why? Like She was my first crush in Bollywood. Okay. Yeah.
इसलिए क्योंकि वो हम साथ साथ में हैं से तब से, या फिर उनकी हर फिल्म देख लो यार उठाकर, बस वो क्रश थी, अब है, अब मैं उनका क्या बताऊँ, मैं क्यों क्रश है शी इज़ माई क्रश. Okay. I mean she's always when I first started watching films I was like I was just in awe of Sonali Bendre and she was my first crush. Yeah. ओके वेल, आपने कभी सोचा है कि किस उम्र में शादी करनी है? नहीं शादी नहीं करनी है, किस उम्र में करनी है ये नहीं सोचा है. बिकॉज ये होता है ना कि अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मुझे हाँ नॉट नाउ बट आपके माइंड में तो होगा ना कि लाइक नहीं, मेरे mind इस में. एक परफेक्ट एज में करनी है. नहीं है मेरे माइंड में, नहीं है अभी कुछ मेरे नहीं. पेरेंट्स के माइंड में होगा, अभी मेरे माइंड में नहीं है. किस उम्र में करनी है, लव यू कांट डिसाइड लव, वो जब होगा तब होगा. एंड यू कांट से कि अब मैं आज बोल दूँ कि मैं 32 के एज में करूँगा या 35 के एज में करूँगा. यू कांट डिसाइड दैट, यू नेवर नो व्हेन यू फाइंड दैट पर्सन यू लव, सो यू कांट रियली हैव अ से ऑन दैट. उनके ऊपर कुछ छोड़ दो यार. ओके हाँ. रब ने बनाई जोड़ी. हाँ. ओके वेल, फैमिलीज़ की तरफ से जब आप एक्टिंग में जा रहे थे तो व्हाट्स देयर रिएक्शन, लाइक फैमिली से क्या था? They're very supportive of my कभी career ऐसा choice. था कि लाइक नहीं करना है, नहीं, बिल्कुल बिकॉज जब बैकग्राउंड वैसा नहीं होता है तो फैमिलीज़ को एक थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए. हाँ. या करियर कैसा नहीं, होगा. हाँ, डर तो कैसा हमेशा से नहीं. था, डर तो था, डर अभी भी है कि क्योंकि पता नहीं है ना कि एज ए सेड सिक्योरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि इसके बाद आपका क्या प्रोजेक्ट है, या हर फ्राइडे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. सो वो तो डर रहता है, बट आई थिंक दे आर हैप्पी दैट आई एम हैप्पी. इफ़ आई एम हैप्पी डूइंग समथिंग देन दे आर वेरी हैप्पी. ओके वेल, अभी आप फ़िलहाल के लिए जब एक्टिंग करते हैं या फिर एनीवेयर, उसके लिए आपका प्रैक्टिसेस क्या होता है? बिकॉज घर पे आप रहते हो तो हाउ यू प्रैक्टिस, बिकॉज होता है कि हम हमेशा कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए सीखना पड़ता है. तो व्हाट्स वाज योर स्किल्स, आई मीन दैट. See, I've been shooting for something and I'm busy shooting. So when you're shooting, you are practicing in front of the camera. What better practice than working on set? But when I'm not shooting, I usually I just enroll for some like I just call my friends home or I enroll for some 10-day acting workshop. कुछ होता है तो कि बस जाकर एक सब घुल मिलकर एक एक्टर like एक्टिंग एक ऐसी जॉब है कि आप अकेले जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लो, आप साथ में किसी होंगे वो ज़्यादा बेटर होता है. You always need a co-actor with you to practice. It's not like you have a guitar and you can just practice by yourself, because your body yourself is an instrument. आप अकेले कर सकते हो प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है, बट अगर आप किसी के साथ हो, इफ़ यू आर रीडिंग सम सीन्स, कोई सीन वर्क हो गया, जस्ट रीडिंग इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ लर्निंग द क्राफ्ट. आई थिंक इफ यू जस्ट इन्वॉल्व इन रीडिंग, इफ रीडिंग बुक्स एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन योर इमेजिनेशन. NSD में मैंने NSD से काफ़ी एक्टर से बात किया. अतुल श्रीवास्तव इज़ वन सच एक्टर जिनसे मेरी बात हुई थी, एंड ही वाज लाइक NSD में सिर्फ रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते, रीडिंग पे बहुत फोकस किया था वहाँ, क्योंकि रीडिंग से आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है. एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट इमेजिनिंग सर्कमस्टांसेस एंड परफॉर्मिंग देम. सो आई थिंक रीडिंग और डूइंग सीन वर्क विद योर को एक्टर्स मेक्स योर क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग. ओके वेल, आपने बचपन में कभी कोई सीरीज देखी है, लाइक मम्मा के साथ में सीरियल? हाँ, देखते क्योंकि थे? सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की. तो मतलब सब ये देखा आपके हूँ. साथ भी था? हाँ, घर पे चलते रहता था पूरा टाइम. Okay. पूरा टाइम ही टीवी चलता रहता था. कभी दादी देख रही है, कभी बड़ी मम्मी देख रही है, कभी Okay. मम्मी. तो घर पे तो चलता ही था, तो अब वो आवाज़ आती रहता था, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं. तो आइकॉनिक सीरियल्स है यार. आई मीन एकता मैम ने क्या बना दिया है, वो आज तक लोगों को याद है. कोमलिका, मुझे सब पता है, पूछो. ओके वेल, अब सीरीज की बात है तो क्या बिग बॉस देखते हो? बिग बॉस में ज़्यादा नहीं देखा हूँ एक्चुअली. रियलिटी शोज़ में मुझे हमेशा से उतना लाइक इंट्रीगिंग नहीं लगा, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है. खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी एक दो बार देखा हूँ, बट एज आई सेड रियलिटी शोज़ में उतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ अभी. ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्टिंग आई प्रेफर वॉचिंग लॉट ऑफ सीरीज़ एंड फिल्म्स. तो मुझे वो सब देखने का टाइम ही नहीं मिलता. अगर मिले टाइम तो मैं देखूँगा कभी बैठ कर. मेरे फ्रेंड्स देखते हैं बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी, एंड बट मुझे एज आई सेड मैं ज़्यादा रियलिटी शोज़ आई थिंक फुल फ्लेजेड देखा नहीं हूँ बैठ कर. ओके वेल, अगर एक बीट होता है, लाइक एक फ़नी हो गया या फिर एक हॉरर हो गया या फिर एक ट्रेजेडी ड्रामा और काफ़ी मारधाड़ वाली, तो आपको कौन सी पसंद है? Genre basically you're asking me. यस. See, as an actor, I believe
you have to have that range as an actor. Or I'm lucky enough to get versatile roles in such an initial stage of my career. um, you'll get to know in the next year of my releases. उसमें काफ़ी versatile roles मुझे मिल रहे, and I'm very happy. So I would not be want to be confined to a particular genre कि मैं सिर्फ romantic करना चाहता हूँ या मैं comedy करना चाहता हूँ. मैं सब कुछ कर सकता हूँ. और मैं भी बता रहा हूँ, I'm very confident as an actor and I can do everything. आप मुझसे कोई भी एक्टिंग करवा लो, मैं कर लूँगा. And what about horror? हॉरर भी कर लूँगा, क्योंकि वी आर ऑल एक्टर्स एंड आई थिंक ये हमारा काम है टू ट्रांसफॉर्म एंड प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. एंड आई थिंक वी आर ट्रेन्ड एज एन एक्टर्स टू डू दैट. सो अगर आप एक ही जॉनर कर रहे हो, आई थिंक इट ऑल्सो गेट्स बोरिंग फॉर यू एंड फॉर द ऑडियंस. Okay. So it's great and it's fun when you play different characters and you play different genres. And I know I can play any character and I can do any genre. Okay. I don't want to come out as I'm boasting or I'm bragging about myself, but I'm saying it's coming from confidence and I can do it. Yeah. Okay. Well, ये बात हुई है तो भूल भुलैया काफ़ी ज़्यादा चल रहा है बिकॉज अभी भी बज़ में है भूल भुलैया. तो 1, 2 and 3 आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी? ये तीनों की अपनी एक चार्म है अलग. One, of course, because it was the first ever Bhool Bhulaiya series, like first film in that series of 3 films. So everyone was like very, awestruck by, "Arey, this is a new genre and it's great." Horror comedy, I think. Yes. नया नया आया था इंडस्ट्री में. Yes. उसके बाद every film is doing justice to it, and आपको numbers दिखा रहे like like Kartik Aaryan is doing a great job. Yes. And the entire cast and crew and Anis sir. So आपको उसका बॉक्स ऑफिस तो पता चल रहा है कि Yes. फिल्म कितनी चल रही है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द एंटायर भूल भुलैया ट्रिलॉजी जितनी अभी तक आई है. And what if you get the chance in next part कि like you are the ज़रूर. हाँ तो क्यों नहीं करूँगा. Okay. Well, according to sources ये भी था कि even Akshay Kumar will also join that next part. So हाँ okay. मुझे नहीं पता. It'll be great if he joins. Okay. Well, इसके अलावा अगर बात करें हम कोई टूर की, बिकॉज एवरीबडी हैव दैट विश इन ओन सेल्फ कि मुझे एक फेवरेट टूर पर जाना है, तो आपको कहाँ जाना है? Switzerland is one place I would love to visit. I've never been to Switzerland and जैसे बॉलीवुड फिल्म्स में भी काफ़ी दिखाया गया है, DDLJ में और ये सारी फिल्म्स में. आई थिंक एक अलग ब्यूटी है स्विट्ज़रलैंड में एंड आई वुड लव टू गो देयर वंस. ओके. एनी 90s की मूवी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अभी भी अच्छी लगती है एंड आप उसे 1000 टाइम्स भी देख सकते हो? आँखियों से गोली मारे. Seriously? या आँखियों से गोली मारे मैं 1000 बार देख सकता हूँ. गोविंदा एंड कादर खान भाई क्या चल रहा है भाई ऐसी बात करते हैं. इधर इधर. ओ माय गॉड व्हाट अ फनी फिल्म यार. क्या एक्टर्स है वो लोग. ओके. लवली फिल्म. It's such a fun film to watch. और मैं जब भी स्कूल से आता था अपने जब क्षेत्र में मैं था और जब भी स्कूल से आता था लंच में करता था तो हर समय लाइक एवरी टाइम टीवी में वही फिल्म चल रही होती थी तो मुझे वो फिल्म रट गई है. एंड आई वुड अगेन लव टू वॉच दैट फिल्म. और मैं देख सकता हूँ हमेशा. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन फॉर यू इज़ लाइक कि आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? I can talk about 2 projects. There's one Australian film. It's called Hindi Vindi. Yeah. It's with Neena Gupta ji. Yeah. वो release होगी अभी next year. The date is not decided yet. The posters are already out. I'm playing an Indian kid born in Australia, and I have an Aussie accent in the film. Apart from that, there's this Amazon Prime series. I've already shot for that. It's called Maa Ka Sum, as in SUM Sum. I'm playing a mathematician in that, and Mona Singh is playing my mom. It's a story of a 19-year-old mathematician and how this mathematician uses his algorithms to look for a date for his single mom. So it's a very nice logline, and this has already been announced at the Prime Video Presents event. बस हाँ ये 2 project I can talk about. बाकी ओके. वेल, अब अगर बात करें आपने जो प्रोजेक्ट्स की बात कही है, कभी आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि लाइक आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे बट देन सडनली इट्स शट डाउन, लाइक एनी समथिंग लाइक दैट यू हैव नहीं एक्सपीरियंस? ऐसा नहीं हुआ है. प्रोजेक्ट बनने के बाद रिलीज़ नहीं हुई है. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए मेरे. लिटिल बिट नेम. नहीं वो रिलीज़ नहीं हुई तो फिर क्या ही बात करना उसके बारे ओके. में. सो ये 1-2 या फिर हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए जो बनकर रिलीज़ नहीं हुए कभी.
और जो कभी रिलीज़ नहीं होंगे वैसा, क्योंकि वो स्क्रैप ही हो गया एक्चुअली बनकर. देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, वो होते हैं कुछ ना कुछ. लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इट्स, अभी तक का कोई ऐसा स्यापा जो कि आपके लाइफ में हुआ है और आप उसे सोचते हो तो आज हंसते हो, सियापा, भगवान करे नहीं हो कभी ऐसा सियापा कुछ. बट कोई फनी वाला. फनी. हाँ, एक्टर, डायरेक्टर और एनी एक्ट्रेस और एनी फ्रेंड और एनी सिचुएशन जो कि आप आज सोचते हो तो ऐसा लगता है कि यार क्या किया था. लेट मी थिंक, आई कांट रिकॉल एनीथिंग ऐसे. एनीथिंग लाइक अबाउट सीन, और कभी मूवी सेट पे या कभी किसी एक्टर के साथ में, कभी किसी फ्रेंड के साथ में. आई एम सो सॉरी, आई कांट रिमेंबर एनीथिंग. कुछ यहाँ पे कुछ नहीं तो हुआ किया. होगा, मुझे सोचना पड़ेगा. मतलब कुछ जैसे सिचुएशन के लाइक यार आज अगर आप सोचो कि यार क्या किया था यार मेरे. आई थिंक इन अ फनी वे. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है. सॉरी, ऐसे याद नहीं आ रहा कुछ, मैं क्या करूँ. ओके, लास्ट क्वेश्चन. आपके हेयर्स बहुत अच्छे हैं, आई मीन घुंघराले. अच्छा. तो ये नेचुरल है या फिर हाँ, ये मतलब नेचुरल है. ओके, बचपन से ऐसे. ये मम्मी पापा या फिर पापा के आई थिंक शुरू में सबके बाल काफ़ी घर में डेंस और कर्ली थे. कर्ली तो नहीं, बस डेंस थे काफ़ी. आई थिंक वही, हाँ, डैड से आया. अब पता नहीं मॉम से आया डैड से आया, मुझे मारेगी घर जाकर कि मेरे बाल डेंस नहीं है. हाँ, ओके. अच्छे जेनेटिक्स मिले मुझे बस, Okay. गुड जीन्स, तभी मैं Yes. यहाँ बैठा हूँ आपके Yes, सामने इस और आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं. थैंक्स टू माय पेरेंट्स. thank you so much Thank for you. joining Thank us. you, Vidhi. And it was a great conversation with Thank you. you. Thank you Thank so much.